So, a very good evening, everyone, and warm welcome to all of you to second session of Knowledge series by Speak for Success. So, it's truly inspiring to see so many ambitious students and professionals joining us today. And it is not just for knowledge, but for a dose of real life strength and motivation. So every journey has its ups and downs, but some stories reminds us how powerful the human spirit can be. So today's theme, from the lowest point to a landmark victory, the inspiring Yashika Mehtani's comeback is more than a session in itself. It's a reflection of courage, resilience, and will to rise when life hits harder. So, you are about to witness a story that challenges every excuse and redefines what it means to never give up. So, before we dive into the conversation, let me briefly introduce you to to the platform that brings us all together. Speak for Success. So, our mission is simple: to bridge the gap between the knowledge and real world growth. Here's what we do: free knowledge sessions like this every Sunday or Thursday, certified programs in finance, AI, and machine learning, and skill development initiatives that help you grow and thrive globally. So, we believe in empowering learners, not just with the information, but with the right mindset and practical tools for success. So, we are honored to have an amazing speaker with us today, CA Yashika Mehtani. She is a qualified chartered accountant whose incredible journey will inspire each one of us. So her story speaks of strength, loss, perseverance, and a comeback that a few can even imagine. So I am Tanya Singh, your host and moderator for today's session, and I feel truly privileged to facilitate this conversation. So let's make this interactive. So with all this, let's officially begin the powerful session. The inspiring Yashika Mehtani's comeback. Over to you, ma'am. Yes, well, I'm really thankful for this opportunity to be invited as speaker for this session. And also, like the way you have introduced me, I'm just truly honored. You deserve it, ma'am. Thank you for that. Okay, so ma'am, can we start from your, let's start from your school life. So, how was your school life and the academic mindset back then? So I was academically very good. Like I was always in the toppers list, first two, three ranks. But also simultaneously, I was also involved in the cultural activities. I was the cultural captain of my house as well in 11th class. But I was involved in both both in studies as well as dancing or even participated in debate, poem, debates, and etc. So it was academically, I was always thriving, but non-academic parts or the extracurricular activities, they were also a considerable. I was participated in everything. So my school life, all everybody was like यशिका तो टॉपर है यशिका या मतलब कि एक होता है ना कि when in 10th class we have to choose the streams like commerce or science. So I was always in the good students category. So every teacher thought that I would take science, but then I took commerce. So it was like a big surprising moment for for them. So, but if I talk about school life, I have enjoyed my school life because after CA, after you enter into CA, there is no college life as such. So only you can just enjoy in the school life only. So my school Yes. life was it was a mixture of everything. My studies, extracurricular activities as well, and we used to have we used to organize the brunch for all the teachers. So Okay. that was also a good part of my my school journey. Okay, ma'am. So, ma'am, when did you decide to pursue CA?
So Was it there was any relative of yours who was CA, or it was just your own thing? so it like my brother, he's like 1 year elder to me. He's also a chartered accountant. So you can say that I followed his footsteps, but it was more like when my 12th results came out, I was aiming for like SRCC, but my percentage were not so high to get into that college. But then I thought that 95.8 percentage is also not so bad. I can try for CA as well. But yeah, एक होता है ना, like when you enter a CA student, the commerce colleges that you want to enroll in, but for somehow I didn't get like that SRC college. But then I thought that why not try CA? But like, and as soon as I enter in CA, I like my brother was also doing CA. So उसके बहाने मेरे को बहुत ज्यादा मतलब इस फील्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज मिली. So it made me curious and made me want to ना कि अब तो मेरे को ये CA प्रीफिक्स अब के नेम के चाहिए ही चाहिए. Okay, so ma'am, was it regular college? Did you join any other graduation course along with I did my graduation, but it was more like distance only. CA? Okay, okay. So, what was your CPT and intermediate preparation like? Like you cleared in first attempt. It's a big thing. Thank you. But like CA, CPT, and CA Inter both were like because CPT was the last attempt for me. उसके बाद CA फाउंडेशन आ गया था. हाँ So जी. CA CPT was like आपको MCQ वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो it was like pretty not so that much hard. So मेरे को बस उस टाइम यही था कि भाई I want to just get good marks. That's it. I was not aiming for any ranks and anything else. I just wanted to get like good marks. So मैं normally studies करती थी. I didn't much put that much efforts in my CA CPT. Normal अपने फ्रेंड्स के साथ chill भी करना and अपना एग्जाम के लिए studies भी करना. So that was the whole scenario in CA CPT. But when I started preparing for my CA inter, then I get to know the reality of chartered accountancy preparation. I went to Jaipur and I enrolled in the VSI center. Jaipur में VSI center है वहाँ पर. हाँ जी. And I get to meet all lot of friends and they were all like कि भाई हमें रैंक लानी है, बहुत ज्यादा पढ़ना है. So then I get to know the okay, now this is the real picture कि भाई आपको कैसे मतलब सीए के अंदर भी कंपटीशन क्या होता है. तो वो मेरे को सीए इंटर में ही मतलब जाके फील हुआ कि भाई अब तो लाइक आई हैव टू पुश एक्स्ट्रा एंड आपको मेरे को मतलब एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे सीए इंटर के लिए. तो पहले तो लाइक ऑल द क्लासेस हैड बीन डन, जो भी कोचिंग के थ्रू जो भी होती थी क्लासेस वगैरह. बट व्हेन आई स्टार्टेड फॉर माय लाइक मेन प्रिपरेशन फॉर सीए इंटर, देन मेरे को थोड़ा रियलाइज हुआ कि भाई ये बहुत ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, टाइम भी देना पड़ेगा. देन ओनली आई विल बी एबल टू क्लियर. सो माई माइंड सेट वॉज आई वॉन्ट टू गेट द रैंक. मेरे को ये था कि मेरे को सीए इंटर में भी रैंक चाहिए. बट आई वॉज नॉट एबल टू सिक्योर एनी रैंक इन सीए इंटर एंड आई क्राइड फॉर दैट. जब मेरा रिजल्ट भी आया ना, तो मेरे को मतलब था कि मैं एक होता ना कि जब आपको रैंक के लिए पढ़ाई करते हैं रैंक नहीं आती है, सो यू फेल्ट लिटिल बिट सैड. बट आई वॉज ऑल्सो ओके कि सभी सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन थी एंड आई वॉज एबल टू क्लियर माई both my groups in the first attempt. एंड इफ आई मे से मैंने सीए इंटर में ज्यादा मेहनत करी है. उस टाइम एक होता है ना कि आपको नई आपको मतलब आपका होराइजन बढ़ जाता है, आपको अच्छे से समझ आता है कि भाई आपको पढ़ाई कैसे करनी है. It's वो like फर्स्ट base. एक्सपीरियंस होता है. हाँ जी. Please continue. Sorry to interrupt. सो इट वाज लाइक जो सीए इंटर एंड था वो मेरे लिए ये था कि आई ओपनिंग थी कि भाई कैसे सीए को हैंडल करना है, कैसे पढ़ाई करनी है. कंपटीशन इज वेरी मच टफ. So you have to, put your extra efforts as well. So Yes, उस टाइम ma'am. पे सारा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग लाइक आई यूज्ड टू डू ऑल दैट. एक भी चीज मिस नहीं करते थे. Okay. So, what kind of challenges that you faced during your intermediate?
Like if you would to advise someone who is doing CA intermediate, what would be your advice? So for CA Inter, I would say don't take it lightly first of all, because आप CA फाउंडेशन करके CA इंटरमीडिएट में आते हो तो आपको लगता है कि मतलब आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इट इंक्रीजेज इन CA इंटर एज वेल. सो यू हैव टू फर्स्ट कीप इन माइंड कि आपको टाइम भी देना होगा एंड एफर्ट्स भी देने होंगे. सो मेरा यही था क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा लाइटली ले लिया था, बट देन आई व्हेन आई गेट टू नो द के कमर कसनी पड़ेगी. तो आप पहले से माइंड में रखो कि भाई आपको मेहनत भी पूरी लगानी होगी इसके अंदर सीए इंटर में भी. एंड द थिंग्स दैट आई वुड से दैट स्टिक टू द आईसीआई स्टडी मटेरियल. That's the like most foremost thing in CA Inter. I have only studied like CA Inter study ICA study material. That's it. No other books I have referred. So I would just say that stick to the ICA material for the CA Inter because that is more than enough. And practice, practice, practice because you know at the end when you do the sum by yourself, you get that confidence and you get that कि okay मैं कर लूंगी. तो एक वो अंदर से ना वो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है. सो दैट फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस. मेरे को अभी भी याद है मैंने सीए इंटर में कम से कम 4-5 रजिस्टर्स पूरे सिर्फ अपने सेल्फ स्टडीज के ही भरे थे सम सॉल्व कर करके. Okay. So, ma'am, at what point did the accident happen in your CA journey? So like after my CA, I started my articleship at EY. Everything was going like good. There were ups and downs, but everything was like normal because ups and downs were like it's a part of life. So सब चल सही चल रहा था. When I had like my 6 months exam leaves, so I thought that I should now start my preparation for CA finals. क्लासेस तो साइड बाय साइड आर्टिकलशिप के साथ चल ही रही थी, पर जब वो एग्जाम के लास्ट मतलब 4 to 5 months को जब एग्जाम लीव्स मिलती है, सो आई वांटेड टू गो टू जयपुर वंस अगेन कि भाई मेरे को या तो AIR-1 CA मतलब एक होता है ना कि आपने CA इंटरमीडिएट भी मैंने जयपुर से ही करी है, क्लियर भी किया. सो आई वांटेड टू लाइक do my CA finals also from the Jaipur. So while I was traveling to Jaipur, in between I met a car accident. Like अभी हम जयपुर पहुंचे भी नहीं थे and the car accident happened when I just started my preparation for my CA finals only. तो exam leaves का period था, उसी time पे मतलब हम पूरी family we were traveling. So then that car accident happened. So, what was your state of mind in the initial recovery phase? तो like starting में तो it was like कि मैं बैठ भी नहीं पाती थी. So I was just I have to like lie down on the bed. बैठने में भी it was like there was some pain होता था, issues होते थे, मैं बैठ नहीं पाती थी, just लेटी रहती थी. So it was like impossible for me to start any studies and anything. So उस टाइम मेरे को डर लगता था for my future. It like how will I will manage. I used to say that my future is now gone. It's the total blank. मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं how would I proceed, मैं क्या आगे करूं, कैसे मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या लूं. सो दैट वाज लाइक अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर मी. क्योंकि आप एक कमरे में हो, बेड के ऊपर लेटे हुए हो, आपको पूरी अपनी लाइफ दिखाई देती है कि आगे क्या करोगे. सो आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड कि मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी. द बिगेस्ट क्वेश्चन व्हाट विल आई डू नाउ. सो स्टार्टिंग में तो इट वाज वेरी 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 हार्ड. मेरी मदर भी लाइक उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी. सो मेरे लिए वो भी सबसे ज्यादा बड़ा ट्रॉमा था कि मेरे को जिस मोमेंट पे सबसे ज्यादा अपनी मम्मी की जरूरत थी, आई वॉज नॉट एबल टू होल्ड हर हैंड. एक बच्चे को अपनी माँ का साथ चाहिए कि भाई सब ठीक हो जाएगा. सो एट दैट पॉइंट आई यूज टू मिस हर अ लॉट. कि मैं हमेशा पूरे दिन यही कह रहती थी कि मेरे को मम्मी चाहिए, मेरे को मम्मी चाहिए, मेरी मम्मी ला कर दो, मेरी मम्मी ला कर दो. पापा कहते थे कहाँ से ला कर दो, ला सकता तो मिल नहीं आता. अब वो नहीं आ सकती, अब वो गई, एक्सेप्ट करना पड़ेगा. दैट वाज द लाइक बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी, एक्सेप्टिंग माय न्यू रियलिटी. जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे. so, इस चीज को एक्सेप्ट करना भी लाइक इट वाज द बिगेस्ट चैलेंज. कौन एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई आप पूरी जिंदगी भर नहीं चल पाओगे. at one moment you are dancing, you are running, you are walking,
and another you are just on bed or otherwise on wheelchair. So ये पूरा transition, it was like really hard for me to just to accept कि ठीक है, मेरे को ये मानने में ही मेरे को सबसे ज्यादा टाइम लग गया था कि मैं अब नहीं चल पाऊंगी. Because I always used to say that मैं चलूंगी मैं देखना. मैंने अपना पूरा टाइम भी लाइक एक्सीडेंट के 2-3 years में आई डिवोटेड ऑन माई हेल्थ. आई लुक फॉर ट्रीटमेंट्स की जिससे मैं अपनी वापस चल पाऊँ. बट एट द एंड मेरे को यही लगा कि भाई मेरे को व्हीलचेयर पे रहना भी पड़ेगा. सो नाउ है जस्ट टू ऑप्शंस, या तो मैं रो रो कर अपनी जिंदगी जियो कि भाई क्या हो गया, अपनी किस्मत को कोसती रहूं, भगवान को कहती रहूं कि भाई आपने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर जो मेरे पास है जिन चीजों पे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, द थिंग्स दैट आई कैन लाइक फोकस ऑन, मैं उस चीज पे ध्यान देती हूँ. मैं चल नहीं सकती बट आई हैव माई हैंड्स, आई हैव माई माइंड जो फुली वर्किंग कंडीशन में है. सो इनके ऊपर ध्यान देते हैं. तो फिर मेरे लिए को यही मतलब ट्रांजिशन हुई मेरी मतलब माइंडसेट में कि भाई पहले मैं गिव अप करने का सोचती थी कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं क्या करूंगी, चल तो पा नहीं रही और किसके लिए करूंगी. यू नो, हम जो भी करते हैं अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए करते हैं. एंड जब वो नहीं है, लाइक आई हैव माई फादर, बट एक होता है ना कि आपको अपनी माँ को खुशियां देनी है. अब वो नहीं है तो एक मन में थॉट्स आते हैं कि अब तू किसके लिए करेगी, जिसके लिए करना चाह रही थी, जिसको खुशियां देनी चाह रही थी, वो तो है नहीं. सो एक मेरे पास रीजन नहीं था कुछ स्टार्ट करने का या अपनी लाइफ को करने का. सो आई वाज मतलब सब छोड़ दिया था मैंने. बट फिर वही एक मोमेंट आया मेरी लाइफ में भी कि मैं बहुत रो रही थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा कि that the treatments are not working on me. It, I have to accept my reality that I will not be able to work. So now I have to focus on the things that I can control. तो उसके लिए भी मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी. एंड इट वाज आल्सो लाइक समथिंग माय मदर ऑलवेज विश्ड कि उनके दोनों बच्चे सीए बने. सो मैंने फिर स्टार्टिंग अपनी सीए से ही करी कि दैट आई वांट टू ब्रिंग माय लाइफ टू द न्यू नॉर्मल, इवन इफ आई एम नॉट एबल टू वर्क, बट स्टिल आई वांट टू बी लाइक बी हैप्पी. So that's how my transition from like everything giving up, सब give up करने के बाद भी I started again, and now like I now I'm a chartered accountant. Yes, ma'am. Ma'am, what made you decide to resume your CA studies? Like, what was the main motivating factor at that time? So it was like my mother first of all, because it was her dream and I wanted to fulfill her last wish कि उनके दोनों बच्चे सीए बने. So first and foremost, it's all because of my mother that I resumed my studies. And also मैंने अपने आप को बस एक दो चॉइस दी थी कि या तो देखो खुश रहना है या पूरी जिंदगी रोते रहना है. अब तेरे को डिसाइड करना है कि देखो कौन सा पाथ चूज करना है. सो आई डिसाइडेड टू कि मेरे को खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीनी है. एंड आई वांटेड टू बी लाइक मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, खुद पर अपना काम लाइक मैं खुद भी कर सकूं. एंड मेरे को वो सीए बनना है तो बनना है. जो चीज 11th 12th से लाइक स्टार्ट करी है अपने सीपीटी से. एक सेकेंड है ना दीदी, चार्जर लाना, चार्जर, सॉरी. सो इट वाज लाइक कि मेरे को जो चीज मैंने स्टार्ट करी है उसको खत्म करना है. जो 12th के बाद आई जस्ट स्टार्टेड माई सीए स्टडीज ओनली. सो आई वांटेड टू लाइक कंप्लीट इट ऑल्सो कि मेरे को इसको बीच में नहीं छोड़ना है. सो इसलिए आई जस्ट रिज्यूम्ड माई स्टडीज अगेन. So, ma'am, how did you manage your studies with your health? Like, it would be difficult for you. या स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे को बैठने में भी मतलब लगा कि मेरे को स्टडीज करनी है तो यू हैव टू सिट राइट फॉर लॉन्गर आवर्स. आपको क्लासेस अटेंड करनी है तो आपको इतना अपने आप को लाइक कैपेबल बनाना है कि आप पूरी 3-3 घंटे की क्लासेस भी देख पाओ आराम से बिना क्योंकि दर्द के. तो इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही था कि मैं इतनी देर बैठ पाऊंगी, कैसे बैठ पाऊंगी, दर्द तो नहीं होगा. सो उसके लिए मेरे को मैंने अपनी फिजियोथेरेपी लाइक आई स्टार्टेड अगेन कि भाई मेरे को इतनी देर बैठ पाऊँ मैं बिना मतलब किसी दर्द वगैरह के. सो एंड ये था. एंड देन अब मैं ज्यादा देर बैठती थी ना तो मेरे को बेड सोर्स हो जाते थे. मेरे लिए ये भी एक बहुत ज्यादा था कि मेरे को इतनी देर बैठना है कि भाई मेरे बेड सोर्स भी ना होए. अगर बेड सोर हो जाते थे तो मेरे को टर्न होके फिर पढ़ना पड़ता था पूरा मतलब
बुक्स वगैरह जो है अपने बेड के आर पार में लगा के रखती थी, एंड टेबल पे लैपटॉप रहता था। अदरवाइज अगर मैं नॉर्मल बैठ पाती थी तो मैं नॉर्मल ऐसे मतलब बैठ के अपनी क्लासेस अटेंड करती थी। एंड और भी टास्क होते थे कि भाई कई बार लाइक दर्द होने लग जाता था, या तो बैक में दर्द होने लग जाता था ज्यादा देर बैठने से। अगर मैं ज्यादा देर लिखती थी तो थोड़ा हाथ भी लाइक पेन करने लग जाता था। तो ये सब होता था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे को सबसे ज्यादा चैलेंज मैं कहूँ कि मैंने सीए फाइनल में लाइक व्हाट आई फेस द मोस्ट वाज दैट डर सा था कि मैं मतलब पेपर कैसे दूंगी, इतना सारा सिलेबस है, विल आई विल एबल टू कवर और नॉट। सो ये सब चीजें मेरे को डाउट्स में डालती थी कि मैं अभी भी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, अपना बेस्ट दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। सो ये सब चैलेंजेस थे, लाइक हेल्थ इश्यूज एंड सेल्फ डाउट्स कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो ये सब चीजें थी जो मतलब मेरे को सबसे ज्यादा मतलब चैलेंजिंग लगती थी। Ma'am, what was your daily study routine during the CA final prep? Daily study routine, it was like I used to study for like 8 to 9 hours. तो Eight इसमें to मैं nine मतलब hours. या बट हाँ मतलब लाइक व्हेन आई वाज लाइक क्लोजर टू द एग्जाम्स, तब मैंने अपनी थोड़ी स्टडीज बढ़ा दी थी, टाइमिंग उसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया था। इट वाज फॉर लाइक देन 10 to 11 hours ऑल्सो। माई मेन फोकस वॉज ऑलवेज ऑन दैट कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ वो मैं अच्छे से पढ़, उसमें मैं कमी नहीं छोड़ रही। अगर मैंने एक चैप्टर भी आज कंप्लीट करा है, सो आई वांटेड टू जस्ट मेक श्योर दैट दैट चैप्टर, द कंसेप्ट्स एंड द क्वेश्चंस मतलब मेरे को एकदम टिप्स पर होने चाहिए मेरे। तो मेरे को ये था कि मैं जो भी करूँ, या ऑडिट हो या फिर बाकी सब्जेक्ट्स हो, वट एवर आई स्टडी, इट वॉज लाइक कि मैं उसको वो अच्छे से करूँ। इफ आई इवन इफ आई एम स्टडिंग फॉर लाइक 7 to 8 hours, आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट दैट वॉज द प्रोडक्टिव वन। क्योंकि आप मेरे को फिर जब लाइक डेली स्टडी रूटीन, बिकॉज आई हैड टू डू सम एक्सरसाइजेज ऑल्सो फॉर माई हेल्थ, फॉर माई लेग्स। तो मेरे को उसके लिए भी अलग से टाइम डिवोट करना पड़ता था फॉर माई एक्सरसाइजेज एंड फॉर माई अदर स्टफ ऑल्सो रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सो ये सब में मेरे को टाइम इतना ही मिल पाता था, 8 to 9 hours। और जब एग्जाम्स पास आने लगे थे, देन आई इंक्रीज माई स्टडिंग आवर्स फॉर लाइक 10 to 11। तो उसमें भी यही होता था कि कभी मैं लेट के पढ़ रही हूँ, कभी मैं बैठ के पढ़ रही हूँ। बट आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ वो सब मैं लाइक अच्छे से कवर कर रही हूँ। Okay, so it was very much like you were very focused because आजकल लाइक हाँ, ये लाइक आई यूज्ड टू मेक लाइक प्रॉपर शेड्यूल कि मेरे को इतने बजे पे इतना करना है, आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, आज ये वाला सब्जेक्ट करना है। तो आई यूज्ड टू मेक लाइक प्रॉपर शेड्यूल एंड देन स्टिक टू दैट ऑल्सो, क्योंकि उसे स्टिक करना, डिसिप्लिन से फॉलो करना भी, वो भी मतलब एक अलग ही होता है। क्योंकि कई बार आपके टास्क पूरे नहीं हो पाते, कई बार आप आलस कर देते हो कि चलो ठीक है कल कर लेंगे, अभी टाइम है, अभी टाइम है, कोई नहीं पोस्टपोन कर देंगे। बट आई मेरे को ये होता था कि मैं जब रात को सोऊं तो मैं वो टिक करके सोऊं कि आज का टास्क मैंने कर लिया। so ma'am, how to stay motivated during a low phase? Like it's very difficult to whenever we feel low. It's a human nature, right? So how do you deal with that thing? So I also used to feel low most of the times, but I have the support of my like family, my father, my brother, and all my friends. They were like, मैं बाहर नहीं जा सकती थी, but they used to come at my home, used to make me feel special, and वो लोग सब आके मेरे को पूरा बताते थे कि बाहर ये सब हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, ऑफिस में आज ये हुआ वो हुआ। तो यू नो आई डिडंट फील लेफ्ट, मेरे को मतलब लेफ्ट आउट फीलिंग नहीं होती थी। And I used to feel good कि my friends are coming at my home. So and they always like kind of motivated me, supported me, and especially the role like my bestie had played कि मैं उनको उसको अगर 2 बजे भी मैसेज करती थी, she used to reply me. When you आप अगर कोई लो फील कर रहे हो ना, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सामने वाला बंदा आपकी सुन रहा है, आपकी फीलिंग्स को। आपको ये नहीं बोला कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं इट्स लाइक कि अगर आप लो फील कर रहे हो ना, अगर आप किसी को अपनी फीलिंग्स शेयर करो, सो इट्स लाइक कि वो आपको ज्ञान देने बांटने लग जाते हैं।
वो सबको वो नहीं चाहिए होता। मेन थिंग होती है कि आप अगर कुछ सैड फील भी कर रहे हो ना एंड यू वांट टू जस्ट एक्सप्रेस, तो कोई ऐसा हो कि जो आपकी बातों को सुन ले, आराम से सारी बातें सुन ले। फिर बाद में अपने आप को ऐसे उनको फील होएगा हल्का, लाइट, यू नो यू विल फील लाइट। सो अगर मेरे को ऐसे मोमेंट्स भी आते थे व्हेन आई यूज्ड टू फील लो, माय फादर वाज ऑलवेज लाइक, यशिका घबरा ना, तू कर लेगी, तू सीए बनेगी। तो यू नो उनका जो फेथ मेरे पे था हमेशा से रहा है। एंड माय ब्रदर, अगर लो फील भी होता था, मैं एकदम रोती रहती थी लेकिन फिर स्टिल रो ली, मन हल्का कर लिया, अब पढ़ने बैठ जा। So they were like very supportive. Like it was really it's like if you accompany yourself with a very supportive people, you also get the motivation to deal with the low phase. Yeah, and you will not, you don't feel alone. That's the main important thing, that you are not alone in this journey. There are a lot of friends here, your family is here. So you don't feel alone and you kind of like focus more on the things then. And I always used to say myself, मैंने ना अपने ना मतलब like सामने ना एक वो भी लगा रखा था पेज सा जिसके ऊपर like I've written CA यशिका। सो तो भी मेरे को यू नो काइंड ऑफ कि भाई सीए बनना है। डेली आप उठते हो, जागते हो, खाना खाते हो, वो आपके सामने दिखाई देता है। सो यू नो आपको वो एक मोटिवेशन मिलती रहती है कि आपको कुछ करके दिखाना है। एंड माई बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन वाज आल्सो माई मदर, कि भाई मेरे को उनकी लास्ट विश पूरी करनी है। तो इट वाज लाइक सीए बनना है, बनना है, बनना Ma'am, how was your articleship experience at EY? है। आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, so my articleship experience was like really good because I get to learn so many things. I get to work with diverse teams. बहुत लोगों से like I used to meet, and आपकी connections बनते हैं, आपकी networking होती है, आपको वो चीजें सीखने को मिलती है, that how to deal with in a professional place. So you get to learn so many things, not just only the technical part, the working part, but other things also, कि आपको कैसे you know how to talk to the clients or the managers or even the partners even. So it's a whole like आपकी पूरी personality change हो जाती है। So that was my EY experience। like I मेरे को ना सिर्फ मतलब मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स भी सीखे हैं, ऑब्वियसली मैं लाइक माय आर्टिकलशिप वाज इन स्टैट ऑडिट। सो आई गेट टू लर्न हाउ टू डू द ऑडिट, बट अदर थिंग्स ऑल्सो, कि भाई आपने सिर्फ आर्टिकलशिप में ये नहीं कि सिर्फ काम काम सीखा है, आपको और चीजें भी सीखनी होती है, आपको कैसे डील करना है, यू नो आपको अपनी सीए फाइनल की स्टडीज भी मैनेज करनी होती है बाय साइड बाय आर्टिकलशिप। सो यू गेट टू लर्न more and more things। Yes, ma'am. And ma'am, at last, what did it make? How did you feel when you became a CA? Like वो moment आप क्या कर रहे थे? And how did you react to that? Because it was the biggest achievement of your life, no? Yeah, it's so true, so true. Like it has been my one of the like biggest achievement। एंड जब रिजल्ट भी आया ना, अर्ली, इट वाज लाइक अर्ली मॉर्निंग, आप नोटिफिकेशन में इट वाज रिटन 2 PM इन द आफ्टरनून, बट द रिजल्ट्स केम अर्ली। एंड आई वाज, मैं भी मतलब लाइक अभी मैंने सब अपना मतलब ब्रेकफास्ट करने ही वाली थी, बट उससे पहले ही लाइक रिजल्ट वर अनाउंस। एंड मैंने इतनी जोर से चिल्लाया, पापा भाई रिजल्ट आ गया। एंड दे केम टू माय रूम, एंड जैसे ही मैंने मतलब वो एंटर दबाया एंड द सक्सेसफुल वर्ड्स देखे, आई वाज लाइक किसी ये बन गई फाइनली। बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट, जो मैंने मतलब लाइक बहुत पहले शायद मेरी जिंदगी में आ जाना था ये मोमेंट, अब जाकर मेरे को मतलब ये मोमेंट फील करने को मिला। सो इट वाज, बनने के बाद भी मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि सीए हो गई, सीए बन गई। सो मतलब क्योंकि एक होता ना, क्योंकि मेरे को ये जब मेरा एक्सीडेंट होना था, हुआ था मेरा 2021 में, उसके 6 मंथ्स बाद ही मेरा ये सीए फाइनल के एग्जाम्स होने थे, बट एक्सीडेंट की वजह से मैं नहीं दे पाई। सो आई हैड टू डिले इट। एंड फाइनली जब ये खुशी मिली मेरे को, आई वाज नॉट एबल टू, मैं क्या रिएक्ट करूं, कैसे करूं, आंखों में आंसू थे। एंड देयर वाज जस्ट वन रिग्रेट कि अपनी मम्मी को नहीं बता पा रही थी कि मैं सीए बन गई। मतलब एक होता है ना कि काश मम्मी भी होती, उनके साथ भी ये खुशी शेयर कर पाती। सो सिर्फ अभी मेरे पास सिर्फ पापा और भाई थे।
जिनसे मतलब जिनको मैंने कहा कि वो सीए बन गई, तो उनकी कमी बहुत ज्यादा खल रही थी मेरे को। एंड अभी लाइक आई एम जस्ट शेयरिंग माई जर्नी एंड पीपल आर लाइक दे आर, हमें आपसे इंस्पिरेशन मिल रही है, यू डिडंट गिव अप, आप हमारे लिए लाइक एक मोटिवेटर हो, मोटिवेशन मिलती है हमें आपसे। सो नाउ आई एम जस्ट फीलिंग ओवरवेल्म्ड फॉर ऑल द लाइक लव एंड अप्रिसिएशन फॉर माई जर्नी। आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि जो भी चैलेंजेस या फिर मतलब मैंने चीजें फेस करी, नाउ इट्स ऑल आर गेटिंग लाइक वर्थ इट। अब मेरे को वो चीजें मतलब पेन जो भी है, पेन जो भी मैंने फील किया, अब जो भी प्यार एंड अप्रिसिएशन मेरे को अपनी जर्नी के लिए मिल रही है, वो पेन मेरे को अब याद नहीं आ रहा। अब नाउ आई एम फीलिंग गुड कि लाइक एवरीवन इज गेटिंग सो इंस्पायर्ड फ्रॉम मी। सो आई एम जस्ट ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल एंड ओवरवेल्म्ड। Yes, ma'am. Ma'am, can you please share some tips and tricks like throughout the CA journey? Anything that you want the students to know? मेरे को हमेशा से लगता है कि जैसे सीए इतना भी डिफिकल्ट कोर्स नहीं है, अगर आप अपने प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलोगे कि भाई आपको कैसे सब्जेक्ट्स को टैकल करना है। एंड इफ यू इफ यू आर डिसिप्लिन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट सीए डिमांड्स डिसिप्लिन। अगर आपने कोई ट्रैकर या कुछ शेड्यूल प्रॉपर चाहिए, एंड इफ यू आर स्टिकिंग टू दैट, आप डेफिनेटली क्लियर करोगे। कई बार होता है कि हमें कोई फेलियर आ जाता है तो हम गिव अप कर देते हैं, बिकॉज गिविंग अप इज वन ऑफ द लाइक इजिएस्ट ऑप्शन। बट उस मोमेंट पे भी यू हैव टू कीप गोइंग। सो गिव अप नहीं करना है। अगर कोई फेलियर आ भी रहा है, कोई चैलेंजेस आ भी रहे हैं, यू हैव टू फेस इट। एंड सेकेंड थिंग, आपको डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा। इफ यू आर मेकिंग एनी ट्रैकर, इफ यू आर मेकिंग एनी शेड्यूल, आपको उसके ऊपर स्टिक रहना है। and you have to have proper guidance for each subjects like how to handle, because audit में जैसे you like audit में आपको आई से स्टडी मटेरियल बाय हार्टेडली आना चाहिए, बिकॉज इन द एंड आपको पेपर में जाके लिखना है। सो यू शुड नो दैट हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स इन एफ आर। अगर मैं एफ आर की बात करूँ, तो लाइक हर सब्जेक्ट का लाइक अलग अलग प्रॉपर तरीका है क्वेश्चंस को हैंडल करने का। एफ आर में आपको थोड़ी बहुत थ्योरी लाइंस भी लिखनी पड़ती है स्टार्टिंग में, एंड देन यू हैव टू राइट द रेस्ट सॉल्यूशन। सो यू शुड नो हाउ टू इवन प्रेजेंट द आंसर्स। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस ही करोगे तभी आपको अपनी कमियां पता चल पाएंगी, वे यू आर लैकिंग। लाइक आई हैव गिवन ओनली वैसे ओनली वन टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट का, बट उसमें मेरे को एटलीस्ट ये तो पता चल ही गया था कि मैं कहाँ पे कमी कर रही हूँ, कहाँ पे मेरे को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सो Yes. प्रैक्टिस हो गया, आपको डिसिप्लिन रहना है कि भाई जो भी आप फॉलो कर रहे हो शेड्यूल, उसके ऊपर स्टिक करो। एंड अगर कोई चैलेंजेस आ भी रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम ले लो, टेक योर टाइम टू डील विद इट, यू नो, टू प्रोसेस इट। बट देन आपको रुकना नहीं है बस। आपको ये नहीं मानना कि भाई सीए छोड़ दी, मैं नहीं कर रहा, मेरे से नहीं हो रहा। ये ना, ये कई कईयों के होते हैं। तो ऐसा ये सब चीजें नहीं सोचनी है, यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। Yes, ma'am. Okay, so let's ask if our audience have any doubt. Kanika, do you have any doubt? Are you there? Yes, Tanya. Hi, how are you? Hello, Kanika. I'm fine. How are you? बढ़िया बढ़िया. Hi, Yashika ma'am. हाय कनिका, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टू दिस मीटिंग सेशन। Oh, thanks to you for taking this session. Okay, so I think with this we can conclude the session. Just wait 1 second, ma'am. I'm sharing my screen. So, ma'am, thank you so much for sharing such a beautiful journey with us today.
it was really like it was really the session was really inspiring for us actually क्योंकि जो चीज एक नॉर्मल सीए स्टूडेंट भी ध्यान नहीं देता है अपनी सीए की प्रिपरेशन में उनको आपने इनकॉर्पोरेट किया अपने जर्नी में and it was really you shared your journey really beautifully with us today. So this is just a token of appreciation from Speak for Success side. And thank you so much for joining us. Thank you. It's my pleasure even like being invited as a speaker. I'm just truly honored for this opportunity. That's nice. So I think we can conclude the session. So stay connected, audience, as well, because we will soon announce a session. And thank you so much. Keep learning, keep growing, and we will see you in the next session. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for joining.